Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to Jagran Josh Awards 2021. First of all, I would like to welcome and thank Honorable Minister of Education, Shri Ramesh Pokhriyal ji, for gracing us with his presence. 2020-21, what a year it was. The pandemic took us all by surprise. First, it impacted the health, then the business, followed by everyday life, and finally, humanity itself. There was a stage when almost everything came to a standstill and we were enveloped by fear, anxiety and depression. However, it is and finally, collaborate to succeed. शिक्षाविदों को, उन शिक्षकों को, उन छात्रों को आप आज सम्मानित कर रहे हैं। मैं इस बात को लेकर के आपको बधाई देना चाहता हूं, आपको शुभकामना देना चाहता हूं, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि ये हमारी संस्कृति है कि जब समाज में विषम परिस्थितियों के बीच चुनौतियों का मुकाबला करके कोई भी व्यक्ति काम करता है, कोई संस्था काम करती है, कोई विचार काम करता है, तो हम सार्वजनिक तरीके से उसका अभिनंदन करते हैं। और जागरण जोश पहले ही शिक्षा को बहुत समर्पित है और उस शिक्षा को समर्पित जागरण जोश ने आज ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो किया है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन अध्यापकों को, उन छात्रों को जो आज सम्मान पा रहे हैं, उन शिक्षाविदों को भी बधाई देना चाहता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से कोरोना का महासंकट आया और हमारा जो देश है उस महासंकट से, कोरोना के उस महासंकट से वो भी अछूता नहीं रहा। ऐसे वक्त पे जब लोग घरों में कैद हो गए होंगे और जबकि हिंदुस्तान का इतना बड़ा शिक्षा, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हिंदुस्तान, उसकी शिक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से 1000 विश्वविद्यालय, 50,000 डिग्री कॉलेज, 15 लाख से अधिक स्कूल और जिस शिक्षा व्यवस्था में 1 करोड़ 10 लाख से भी अधिक अध्यापक हों और कुल कई देशों की, यदि दुनिया के यूरोपीय देशों को लगाएंगे तो दर्जनों देशों की संख्या उतनी नहीं होती जितनी अकेला हमारे देश की छात्र छात्राओं की संख्या होती है। अमेरिका की भी जनसंख्या से ज्यादा 33 करोड़ छात्र छात्राएं और उसके अभिभावक। मैं समझता हूं कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से मेरे छात्रों ने काम दिखाया, सहजता, शालीनता और सौम्यता दिखाई, धैर्य दिखाया, मेरे अभिभावकों ने जिस तरीके से उस बच्चे को मनोबल बढ़ा करके रखा, जिस तरीके से मेरे अध्यापक गण ने एक योद्धा के रूप में इन विषम परिस्थितियों में भी पूरी दुनिया का उदाहरण बनाया हिंदुस्तान, कि हमने घरों को ही स्कूलों में तब्दील कर दिया था और ऑनलाइन शिक्षा शुरू कर दी थी। और ये केवल ऑनलाइन शिक्षा ही शुरू नहीं की, समय पर परीक्षाएं करवाई, समय पर रिजल्ट दिया, हमने जेईई की परीक्षाएं करवाई। दुनिया का कोरोना काल का सबसे बड़ा नीट की परीक्षा करवाने में हम सफल रहे। Thank you so much, Mr. Sagar, for these insightful words. We are indeed obliged with your presence. And on that note, let us begin our awards segment. Let us begin with the first category of nominations in the segment, Outstanding Educational Leaders. In this category, JagranJosh.com salutes the relentless efforts of those who demonstrated excellence in educational leadership during the pandemic. The winners have been chosen on the basis of public voting and the valued decision of our jury panelists. And now let us take a look at the nominations for the category Outstanding Educational Leaders. Presenting nominations in the category Outstanding Educational Leader, Miss Geeta Jain, Principal of Legacy School, Bengaluru, India.
During the pandemic, Miss Geeta Jain has provided a global perspective to students, helping them understand the world socially, politically, culturally, environmentally, and technologically through the United Nations Sustainable Development Goals. Sylvester Peter, founder and chief angel of My Angels Academy. Sylvester changed the lives of children in slums using love and football. Amid the COVID-19 crisis, he launched a series of initiatives to help sensitize students about COVID and to ensure their academic continuity in slums of Delhi and for tribal children in Odisha. Mr. Sarvest Mishra, founder Edu Leaders UP Initiative. Mr. Sarvest Mishra founded the Edu Leaders UP Initiative and trained over 450,000 teachers to use online and digital tools during the COVID-19 period. नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर सर्वेश मिश्रा बस्ती से हूँ। बस्ती उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है और लॉकडाउन के दौरान हमने एक छोटा सा प्रयास किया। जब हमारे स्कूल्स बंद हुए टीचर्स के लिए, तो मुझे लगा कि हमारे टीचर्स, बच्चे घरों में होंगे, टीचर्स होंगे, तो हमने टीचर्स को ऑनलाइन ट्रेनिंग देने का एक कार्यक्रम ऐसे ही प्लान किया और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के साथ 250 प्रदेश के जितने 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से 2-2, 4-4 टीचर्स को जोड़ा जो थोड़ा टेक्नो सेवी थे, उनको लेके एक प्लान किया और ये सिलसिला चला तो पूरे सितंबर तक चलता ही रहा। और इस दौरान हमने 45,000 से ज्यादा टीचर्स को स्कूल लीडरशिप, लर्निंग असेसमेंट और ICT का उपयोग शिक्षण में कैसे करें, इन पाठ्यक्रमों पे हमने ट्रेंड करने का काम किया। और हमारे इस प्रयास को हमारे स्टेट के जो ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, जो हमारे DG हैं श्री विजय के आनंद जी, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, हमारे डायरेक्टर सरवेन सर और स्पेशली ललिता मैम जो SIT के निदेशक हैं, उनका पूरा सपोर्ट मिला। तो उनके सहारे हम स्टेट के हर जनपद में हर टीचर तक अपनी पहुंच बना पाए। और इस पूरा जो लॉकडाउन का पीरियड था, उसके बाद का भी जो पीरियड था, वो हमारे टीचर्स ने एज लर्नर जो सीखा उसको ग्राउंड तक अपने बच्चों के बीच लेके गए और ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात रही। हमारे इस प्रयास को जागरण जोश ने जिस तरह से सराहा है और आज हमें ये सम्मान देने का काम किया है हमारे छोटे से प्रयास के लिए, मैं आभारी हूँ। आदरणीय हमारे भारतवर्ष के जो शिक्षा मंत्री जी भी जुड़े थे, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ हमें इस कार्यक्रम में चुनने के लिए। थैंक यू अगेन। थैंक यू मैम। Mr. Mishra, thank you so much and congratulations once again for this outstanding contribution and the efforts which you have put in during this period of pandemic which the entire country faced. Finally, the winner in this category, the final